Hi friends, now time to see how the revolt of 1857 progressed in Gujarat. The 7th Battalion of the British Army broke into revolt in Ahmedabad, Gujarat in June 1857. So this what happened, like what happened in UP in North India. Some battalions of British Army broke free and they revolted. So in Gujarat, the 7th Battalion revolted, but it was soon halted. उसको रोक दिया गया. Afterwards, Dahod, Jalod, Godhra of Panchmahal area witnessed skirmishes. Skirmishes means small fights with the British Army. Soldiers could capture some government offices with the help of the natives, appear in this case the tribals, the local people. But they were soon defeated. The Nayakdas of Panchmahal continued the rebellion almost for a year. They are a community of Panchmahal. The Nayakdas fought for almost 1 year, but ultimately they were all crushed. Garbadas Patel, the headman of Anand in Kheda district, collected almost 2,000 volunteers of the Kohli and Nayakda communities. So Garbadas Patel became the leader of the Kohli and Nayakda movement against the British. People like Jivabai Thakur of Khanpur, that's near Ahmedabad, Malaji Joshi and Krishna Das Dave, they all supported Garbadas Patel. But ultimately what happened? The supporters of Garbadas were captured by the Britishers. They were tied to the cannon, तोप से बांध के. They were blown off with a cannonball fire. यानी बहुत खराब तरीके से ब्रिटिश ने उनको ट्रीट किया. गर्बदास को एग्जाइल में भेज दिया, अंडमान जेल में. परमानेंट एग्जाइल, उसको काला पानी बोलते हैं. दैट थिंग इज कॉल्ड काला पानी. काला पानी की सजा बोलते हैं उसको. Once you go, you never come back. तो अंडमान जेल में भेज दिया. Now the people of Chandup village, which is 16 km away from Idar, accepted leadership of Nathaji and Yamaji, and they joined the revolt. British had camped at Nandana village between Okha and Bardi. The British command of navy became impatient, and he reached the fort of Bet Dwarka via the Bay of Bet. Donovan, who was the commander of the British Army, Navy, he ordered an attack on the fort. The Wagher people, Waghers inside the fort, had no such artillery to counter attack. उनके पास कोई ऐसे अभी वो शिप में से तोपबाजी कर रहा है. वाघेर के पास ऐसा कुछ था नहीं. The Wagher woman at this time came up with a very brave and innovative idea. They soaked the mattresses with water in which they could catch the cannonballs and cool them immediately. Right? What they did, mattresses में पानी से गीले कर दिए और जो टोप आते थे वो टोप को mattresses में वो पकड़ते थे और वो mattresses वो wet, so they cooled the cannonballs. They did not explode. And then the Wagher men now could fight the battle without being hit by cannonballs. टोप से वो बच जाते थे. Nowhere in the history of the world such act of valor has been exhibited. इतनी बहादुरी के men and women मिलके ब्रिटिश के सामना किया, ऐसा कभी कोई वर्ल्ड में ऐसा कभी हुआ नहीं. Wagher women very bravely disarmed the cannonballs without worrying about their own lives. Their act of bravery was equivalent to that of Rani Lakshmibai. So that is why they are called the Lakshmibais of Gujarat. Then the city of North Gujarat like Patan, Kheralu, Biloda, Mudeti, they broke into revolt with the help of natives. December 1858 में टाटिया टोपे जो बड़ा लीडर था, he stayed with his army in Panchmahal district of Gujarat. लेकिन he had to escape to the forest of Vaswada when being chased by the British army. So you see, the revolt also slowly fizzled out. Now let's talk of the end of the revolt. So during the revolt,
weapons and soldiers were supplied to the Britishers from England, Iran, etc. तो सी ब्रिटिशर्स को वेपन्स सोल्जर्स का सप्लाई का प्रॉब्लम था ही नहीं. द रिवॉल्ट हैड स्टार्टेड, यानी ये फर्स्ट, दिस इज द फर्स्ट रीजन, राइट, व्हाई ब्रिटिश could win. Then the revolt started on 10th May instead of 31st May. यानी वो 20 दिन जल्दी चालू हो गया था. बट बाय द एंड ऑफ जून 1857, देखो मई जून 1.5 महीने में, द ब्रिटिश वर एबल टू रिगेन कंट्रोल ऑन बनारस एंड इलाहाबाद. कानपुर जो था उसको जुलाई में कैप्चर कर दिया एंड दिल्ली को सितंबर में ही कैप्चर कर दिया गया. तो इसी 22 सितंबर तो रिवॉल्ट इज प्रैक्टिकली ऑफ. बाद में तात्या टोपे 2 साल तक उनको लड़ता रहा, लेकिन कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा ना उसका. बहादुर शाह जफर जो दिल्ली में थे, उसकी वाइफ क्वीन बेगम जीनत महल, दे वर इम्प्रिजन्ड. बाद में उनको रंगून भेज दिया गया, विच इज द कैपिटल ऑफ बर्मा, where they died after a few years. Their 3 sons were murdered. यानी ब्रिटिश ने कितना जबरदस्त बदला लिया कि बहादुर शाह जफर को तो इंडिया से ही बाहर भेज दिया, रंगून भेज दिया, दैट इंडिया से ही बाहर कर दिया. एंड ही डाइड देयर ओनली इन अ फ्यू ईयर्स. उनके 3 बच्चों को मार दिया गया, यानी पूरा मुगल एम्पायर को तो साफ कर दिया. लखनऊ जो था, इट वॉज रिकैप्चर्ड इन मार्च 1858. रानी झांसी फेल बिकॉज ऑफ द ट्रेजरी ऑफ वन ऑफ हर कोर्टियर्स ऑफ झांसी. एक उसका एक दरबारी ने उसका गद्दारी करके झांसी के जो किला का दरवाजा खोल दिया था, एंड लक्ष्मीबाई अल्टीमेटली हैड टू रन अवे. शी रैन टुवर्ड्स कल्पी, लेकिन लड़ते लड़ते शी डाइड इन अ बैटल. नाना साहेब पेशवा एस्केप टू नेपाल आफ्टर फाइनल डिफीट. यानी ही सॉ के जैसे बहादुर शाह के साथ हुआ, बाकी सबके साथ हुआ, तो मेरा भी हालत खराब ही होने वाला है, तो वो नेपाल भाग गया. एंड बाद में सम पीपल बिलीव दैट वो छुप के बाद में सीहोर विलेज आ गया था ऑफ भावनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, एंड ही डाइड इन 1902. ये वी डोंट नो एक्चुअली ये क्या हुआ नाना साहब का. नेपाल गया, उसके बाद क्या हुआ उनका मालूम नहीं है. तो सम पीपल से कि वो भावनगर में ही, गुजरात में ही बाद में वो छुप छुप के रहा, एक सामान्य आदमी बन के, एंड 1902 में ही डाइड, बट वी डोंट नो एग्जैक्टली. तात्या टोपे, अगेन इट इज सेड, वो भी इट इज सेड, देखो मालूम नहीं एग्जैक्ट. उसका ही एक एलाई ने, उसका एक फ्रेंड ने, साथी ने उसका गद्दारी की, उसको बिट्रे कर दिया. एंड तात्या टोपे वॉज कॉट बाय ब्रिटिश ऑफिसर्स, एंड अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से तात्या टोपे वॉज हैंग्ड ऑन 18 अप्रैल 1859, यानी 2 साल बाद. However, as per other sources, जो ऑफिशियल गवर्नमेंट सोर्स के हिसाब से तात्या टोपे को लटकाया गया था. दूसरे जो सोर्स है, that we don't know actually, we come to know that Tatta Tope had managed to escape and someone else was hanged in this place, and it is believed that he spent the last years of his life in Navsari. क्या सही है मालूम नहीं है. वैसे सुभाष चंद्र बोस के मौत के बारे में भी बहुत सारे स्टोरीज है कि कुछ लोग कहते हैं वो मरा ही नहीं, वो प्लेन क्रैश में. तो वी डोंट नो. इन दिस केस सम सीक्रेट्स आर केप्ट सीक्रेट्स. ओके, नाउ why did the revolt fail and what were the consequences of the revolt? Alright, so let's finish it off. Chalo, in this video itself, the revolutionaries failed to retrieve power from the British due to their limitations. क्या limitations थे? तो first, they lacked coordination. सब अलग अलग लड़ते थे. There was no centralized leadership. There was an absence of centralized leadership. एक कोई लीडर नहीं था. Right? There was no provision for reinforcement of men, money and ammunition. वही प्रॉब्लम था कि कोऑर्डिनेशन नहीं था, सप्लाई नहीं था ये सब का. Then it happened before the pre-planned date. So planning डिस्टर्ब हो गया और ब्रिटिश अलर्ट हो गए. Then it remained concentrated largely North India only. हमने मैप में देखा था. और द सेम टाइम कुछ सोशल रिफॉर्मर्स जो थे, दे रिफ्रेन्ड फ्रॉम ज्वाइनिंग द रिवॉल्ट. सब ने ज्वाइन नहीं किया. इंटेलेक्चुअल क्लास डिड नॉट सपोर्ट द रिवॉल्ट
बिकॉज सी ये रिवॉल्ट इंडिया की आज़ादी के लिए था ही नहीं ना ये चीज़. अगर आप देखिए तो ये तो सिर्फ राजा लोग ने लड़ा, सोल्जर्स ने लड़ा, जिसने खोया ब्रिटिश के साथ ज़मीन खोया वही लोग ने पार्ट लिया. बाकी nobody else took part in the revolt. देन इंडिया में बहुत सारा डाइवर्सिटी है रीजन वाइज, लैंग्वेज में, फूड में है, ड्रेसिंग सेंस में एक्सेट्रा. ब्रिटिश के आने से पहले पीपल ऑफ इंडिया वर रूल बाय रीजनल डिनेस्टीज. तो सेंटिमेंट ऑफ नेशनलिज्म, बिलोंगिंगनेस टू इंडिया एज वन नेशन हैड नॉट डेवलप्ड आइदर इन पीपल और इन देयर लीडर्स. सो मैनी लीडर्स जो थे they sided with the British or they remain passive at the time of revolt. Actually neutral we can say, right? Passive or we can say neutral. वो किसी का साथ ही नहीं दिया उन लोगों ने, बिकॉज वो नेशनलिज्म का स्पिरिट डेवलप हुआ ही नहीं था. इंडियन है और इंडिया की आज़ादी के लिए लड़ना वो तो बहुत बाद में आया. 1857 रिवॉल्ट में ये था ही नहीं ना. अच्छा हुआ ये रिवॉल्ट फेल हुआ, बिकॉज अगर ये रिवॉल्ट सफल होता, ब्रिटिश इंडिया से भाग जाते तो इंडिया के वापस 1000 टुकड़े हो जाते और 1000 टुकड़े वाला इंडिया वापस एक दूसरे से लड़ता रहता. अन्य राजा लड़ते ही रहते थे, कभी यूनिटी होती नहीं, कभी तरक्की होती नहीं, बाद में कोई और इंडिया पर राज करता. तो ये अच्छा हुआ ये रिवॉल्ट एक्चुअली फेल हुआ, बिकॉज हमें टाइम मिला नेशनलिज्म को डेवलप करने के लिए और पूरी इंडिया की आज़ादी के लिए लड़ाई करने के लिए. तो सिख और गुरखा वो लोग ब्रिटिश के साइड पे फाइट किया, और ये हमारा बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, बिकॉज सबसे बड़े वॉरियर्स सिख लोग और गुरखा लोग हैं. ब्रिटिश आर्मी में सिख रेजिमेंट, गुरखा रेजिमेंट वो वेरी ब्रेव एंड दे वर ऑन द साइड ऑफ ब्रिटिश. ब्रिटिश की आर्मी सुपीरियर थी, उनका वेपन सुपीरियर, उनका मिलिट्री कमांडर्स वो सुपीरियर. एंड अगेन वही था, देखो ऑल द लीडर्स वर फाइटिंग फॉर रिगेनिंग देयर पावर और टेरिटरीज. They were not fighting for the freedom of their nation. ये आज़ादी, कंप्लीट आज़ादी की लड़ाई नहीं, खुद की आज़ादी की लड़ाई थी, इंडिपेंडेंट, राइट. एंड वो अच्छा नहीं था. सो उसके अलावा और भी रीजन हो सकते हैं आपके, यू कैन थिंक ऑफ इट. लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ है, देखो इसके बहुत सारे अच्छे परिणाम आए, फार फैचिंग परिणाम आए. दो इट वॉज नॉट सक्सेसफुल अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, बट इट अशर्ड इन, इट ब्रॉट इन a new era of change. क्या चेंज आया? See the company rule, first change, देखो company rule came to an end in India, and India came under the rule of the crown. Crown means British government, the king of Britain. So we came under rule of the British government. ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल एंड हो गया, ये अच्छी बात हुई. इसलिए आप देख सकते हैं कि बिफोर 1857 तक गवर्नर जनरल्स का नाम आता है. गवर्नर जनरल्स वो लाइक वेलेस्ली, एलहाउसी, वो ऑल गवर्नर जनरल्स. 1857 के बाद वी हैव वाइसरॉयज, राइट. वाइसरॉय आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द किंग ऑफ इंग्लैंड, राइट. तो वाइसरॉयज का रूल है. देन द इंटरफियरेंस in the internal affair of the princely states of India was stopped. ब्रिटिश ने दे सॉ कि ये प्रिंसली स्टेट्स ने ही रिवॉल्व किया, अभी हम क्या करें ताकि भविष्य में वापस वो रिवॉल्व नहीं करे. तो इंटरनल अफेयर्स में वो इंटरफेयर करना बंद कर दिया. देन ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज कंपेल्ड टू चेंज इट्स पॉलिसीज टुवर्ड्स इंडिया. क्या चेंज हुआ आप आगे के स्टैंडर्ड्स में, 9th स्टैंडर्ड में आप डिटेल में पढ़ेंगे आप. द सैलरी, अलाउंसेज एंड फैसिलिटी गिवन टू इंडियन सोल्जर्स वर इंक्रीज, ताकि वो खुश रहे. ये चेंज हुआ. एंड दिस रिवॉल्ट हेल्प्ड इन इन्वोकिंग, इन ब्रिंगिंग अबाउट अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन द पीपल ऑफ इंडिया. ये हमारा फर्स्ट स्ट्रगल हुआ ना, दिस इज आवर फर्स्ट स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, राइट. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, राइट. सो यू कैन सी इंडियन इंडिपेंडेंस, ये वर्ड इंडियन came slowly after this revolt. All right, so this chapter is over. We'll learn more about this in the subsequent chapters of our history part. At the same time, we'll learn a little bit more detail in 9th standard also. Okay, so bye friends. Hope you enjoyed watching these videos.